وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ قائم کی گئی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو برانچ کو بے شمار اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے. تو ان میں سے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ متصب کا انسٹیٹیوشن قائم کیا. اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے متصب کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا. مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ آفیشلس کو اس طرح سے کنٹرول کرے. یہ ایک رول ادا کرے گا برج پر پرائیویٹ پرسن کے درمیان اور گورنمنٹ آفیشل کا. اس کے لیے یہ انسٹیٹیوشن جو تھا وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ آفیشل جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں اور پرائیویٹ پرسنس کے جو رائٹس ہیں خاص کر فنڈامنٹل رائٹس جن کو کانسٹیٹیوشن میں انشرائن کیا جاتا ہے ان کو جو ہے ان کی ٹرانسگریشن نہ کر سکیں یا ان کو جو ہے وہ وائلیٹ نہ کر سکیں. تو یہ مقصد تھا متصب قائم کرنے کا. پوری دنیا میں متصب کا انسٹیٹیوشن ہمیں نظر آتا ہے. امریکہ سے لے کر برطانیہ تک پورے یورپ میں متصب کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی متصب کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. مین مقصد جو ہے متصب جو ہے انگلش میں اسے امبیڈسمنٹ کہتے ہیں. امبیڈسمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم ڈیفائن کس طرح سے کر سکتے ہیں. واٹ از دی ڈیفینیشن آف امبیڈسمنٹ؟ امبیڈسمنٹ is an institution which stand like a watchdog between the private persons and government officials. If the government officials misuse their power, transgress their powers, and violated the rights, political, economic, civic, and fundamental rights of the people. تو متصب کے پاس آپ اپلیکیشن درج کر کے اپنی جو بھی گریونسز ہے اس کو ایک اپلیکیشن کی شکل میں درج کر کے جو ہے وہ اس کے پاس آپ فائل کر سکتے ہیں. تو وہ ایز اے کورٹ ایڈمنسٹریٹو کورٹ پہ جس طرح ٹرائیبیونل جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے میٹرز کو ہینڈل کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ متصب جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. پاکستان میں متصب کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ 1983 میں جو تھا وہ قائم کیا گیا. صدر ضیاء کے زمانے میں آرڈر کے ذریعے آرڈر جو آیا تھا وہ 1983 میں آیا تھا جس کے ذریعے وہ متصب کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. پرپس کیا تھا؟ ایک کمیشن بیٹھا تھا پاکستان میں. کمیشن بیٹھا تھا کارنیلیس جسٹس کارنیلیس کی قیادت میں سپرویژن میں اور جسٹس محمود الرحمان کی سپرویژن میں. ان دونوں نے رپورٹ پیش کی. رپورٹ یہ پیش کی کہ جو پرائیویٹ پرسن ہیں جو پبلک ہے اگر ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ تو اس کو چیک کرنے کا کوئی سالڈ میکانزم نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ متصب یعنی کہ انگلش میں اس کو ہم امبیڈسمنٹ کہتے ہیں اس کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کیا جائے. تو اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے 1983 میں جب مجلس شورا تھی تو اس وقت یہ جو تھا وہ آرڈر کی شکل میں آیا تھا, آرڈیننس کی شکل میں نہیں آیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1983 میں مارشل لا لگا ہوا تھا. کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ سسپینڈ تھا. جب کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو اپنا حکم نامہ جاری کرتا ہے وہ آرڈر کی شکل میں ہوتا ہے, آرڈیننس کی شکل میں نہیں ہوتا. اب جو متصب تھا, اب متصب دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وفاقی متصب ہوتا ہے, ایک صوبائی متصب ہوتا ہے. وفاقی متصب جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹس کے میٹرز جس طرح کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن پاکستان کو پڑھا ہے کہ جو وفاقی گورنمنٹ کے میٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ گریونسز شکایات سنتا ہے, اور صوبائی متصب جو ہے وہ صوبائی جو محکمے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی گریونسز جو ہے وہ سنتا ہے. پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ اف اینی مال پریکٹسز, اب مال پریکٹس کا لفظ آپ بار بار سنتے آئے ہیں, پارٹ 1 میں بھی, پارٹ 2 میں بھی, پارٹ 3. تو مال پریکٹس جو ہے انلیگل پریکٹس اور مال پریکٹس جن کے مال فیسنس, نان فیسن, مس فیسنس. If the any government officials conducted or do any act which is amounting to malfeasance or malpractice, اس کے بارے میں آپ شکایت جو ہے
कंप्लेंट जो है वो वफाकी मकसद के ऑफिस में कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, आप जो है वहाँ पे ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं, आप डाक के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप अपने एडवोकेट के ज़रिए भी वफाकी मकसद के सामने जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। वफाकी मकसद जो है, जो हमने मैटर पढ़े हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के, उन मैटर्स के बारे में ग्रीवेंसेस नहीं सुन सकता। टर्म्स एंड कंडीशन के मैटर्स अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और 74 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में हमने पढ़ा है, उन मैटर्स के बारे में हम ट्राइब्यूनल के सामने अपनी जो है वो ग्रीवेंसेस या अपनी कंप्लेंट जो दर्ज करवा सकते हैं। बाकी मकसद के सामने जो मामला हम पेश करेंगे वो ऐसे मामला होंगे जो कि उनके माल एडमिनिस्ट्रेशन या माल प्रैक्टिस के बारे में होंगे अदर देन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कोई केस कोर्ट में सब जुडिस है, वो मामला वफाकी मकसद से, अगर उसका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस के साथ है, फॉरेन अफेयर्स के साथ है, तो वो मामला फेडरेशन के साथ है, डायरेक्ट लिंक है, वो मामला भी वफाकी मकसद जो है वो नहीं सुन सकता। मकसद ये है कि विदाउट कास्ट एक्सपीडिशियस जो है वो रेमेडी आम लोगों तक पहुँचाना जो है वो वफाकी मकसद और सूबाई मकसद। अगर आप लाहौर में जाएँ तो आपको वहाँ पे वफाकी मकसद का भी ऑफिस मिलेगा और सूबाई मकसद का भी ऑफिस मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ऑफिस में भी आप जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उपाड़ा में आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कोई ग्रीवेंसेस है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, डीपीओ के खिलाफ है, डीसीओ के खिलाफ आपको कोई ग्रीवेंसेस है, आपको किसी जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के खिलाफ ग्रीवेंसेस है, तमाम के खिलाफ आप ग्रीवेंसेस जो है वो कर सकते हो वफाकी और सूबाई मकसद में। तो क्वेश्चन जो है ये आप किस तरह से इसको जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो इसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी आप इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इंस्टीट्यूशन को इनिशिएट किया गया, तो इसको बाद में जो है हम पढ़ते हैं सल्तनत उस्मानिया, तुर्क एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर थी, उसने पूरी दुनिया में इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न ईरा में हम ये देखते हैं इस इंस्टीट्यूशन को स्वीडन में सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद अब ये वफाकी और सूबाई मकसद का इंस्टीट्यूशन जो है वो सारी दुनिया में हम ये देखते हैं। अब इसके बाद है इसकी जो है वो आपने डिफाइन करना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ombudsman, OMBDUSMAN, बर्ड्समैन। बर्ड्समैन का मीनिंग क्या है, तो उसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वो आपने देना है। इसके अलावा जो है आपने इस एक्ट के मुताबिक, बर्ड्समैन एक्ट के मुताबिक इसका मीनिंग देना है। तो बर्ड्समैन की एक डेफिनेशन जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि बर्ड्समैन stand between the private persons and government officials and we address the grievances about the maladministration। अब maladministration में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, नेपोटिज्म यानी कि कीना पकड़ी, अपने ख़ानदान के लोगों को oblige करना, फेवरिज्म से मुराद ये है कि अपनी पार्टी के लोगों को फेवर करना, अपने इलाके के लोगों को जो है वो फेवर करना, जॉबरी, मेरिट से हटकर जो है वो जॉब्स लोगों में देना। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसकी डेफिनेशन में जो है वो आ जाती है। इसके अलावा आपने रीड आउट करना है, आपने विकीपीडिया में जाके जो है वो रीड आउट करना है कि ये एम्बर्समेंट जो ऑर्डर है 1983, इसकी डिटेल जो है वहाँ पे जाके आपने इसको जो है वो डिस्कस करना है। वफाकी मकसद कौन जो है वो अपॉइंट करता है? वफाकी मकसद जो है फेडरल एम्बर्समेंट being appointed by the president. Once it has been appointed, it cannot be reappointed। एक दफ़ा जब वफाकी मकसद जो अपॉइंट हो जाता है उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब वफाकी मकसद जो है वो कौन कौन से जो है वो केसेस सब जुडिस जो है वो कर सकता है, उसको केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिफर कर सकती है, हाई कोर्ट रिफर कर सकती है, प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस की शक्ल में जो है वो उसके पास केस जो है वो भेज सकता है, प्राइवेट पर्सन जो है कंप्लेंट करके उसके पास केस जो है वो लेके जा सकता है। तो इस तरह से जो है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो एग्जेक्टिव है, अब उसके नीचे जो काम करती हैं उनको एजेंसीज कहते हैं, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो एजेंसीज एंड गवर्नमेंट कैन फाइल एनी ग्रीवेंसेस बिफोर द बाकी मकसद के सामने जो कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। वफाकी मकसद का पौधा जो है वो पाकिस्तान में, या सूबाई मकसद पौधा जो है उस तरह फ्रूटेबल नहीं रहा जिस तरह के पूरी दुनिया में देखते हैं, जिस तरह के इसके नताइज
लेकिन इसके बावजूद इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं कि एक ये है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग अ जस्टिस विदाउट एनी कॉस्ट. Number 2, it has been providing a justice speedily and expeditiously. Number 3, without advocate, you can appear before these institutions. You can't need any court fee और स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह की चीज़ जो है वो आपको इसमें ऐड नहीं करनी पड़ती. ये एक जो है वो इसका जो है करेक्टरिस्टिक है. इसमें वफाकी महोत्सव जो है बिल्कुल जो है वो सिविल प्रोसीजर की तरह या सिविल कोड की तरह जो है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करता है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है अप्लाई करता है. केस को प्रेजेंट किया जाता है जिस तरह सिविल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है. क्वेश्चन फैक्ट को डिस्कस किया जाता है. शहादत जो है बिल्कुल उसी तरह ली जाती है जिस तरह के सिविल केस में ली जाती है. और जो है विटनेस को तलब किया जा सकता है. कमीशन जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं. वो सारा प्रोसीजर जो ज़ाब्ता दीवानी में आपने पढ़ा है वो वफाकी महोत्सव जो है वो अपना जो डिसीजन देता है वो ऑर्डर की शक्ल में होता है. वो डिसीजन जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ रिकमेंडेशन और सजेशन. जिस तरह कोर्ट डिसीजन देती है, सिविल कोर्ट डिसीजन देती है या क्रिमिनल कोर्ट डिसीजन देती है, उस तरह का वो डिसीजन नहीं होता, बल्कि वो डिसीजन जो है रिकमेंडेशन और सजेशन की तर्ज का होता है. जो कंसर्न अथॉरिटी को जो है वो डिस्पैच किया जाता है, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उसमें अपना जो है वो फिर उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद करती है. अगर वो उसके मुताबिक अमल दरामद ना करे तो वफाकी महोत्सव जो है वो प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकता है कि आप जो है वो उस पर अमल दरामद करवाएं. तो ये एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो है वो फॉर्म कैम किया जाता है. देखिए पर्पस क्या है इस इंस्टीट्यूशन में. तो जब हम ये पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस जो है वो जानते हैं, तो उसका पर्पस जो है वो वफाकी महोत्सव का भी पर्पस वही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए कायम किया गया था कि लोगों के प्राइवेट पर्सनस के मामला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होते हैं, पहला पर्पस ये था उनको रिड्रेस करने के लिए कोई कन्वीनियंट पर्टिनेंट कोई तरीका जो है वो होना चाहिए. और दूसरा पर्पस जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता या वो लिटिगेशन के अखराजात जो है वो अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बनाया गया कि ऑर्डिनरी पीपल भी अपने मामला को रिड्रेस जो है वो कर सकें. तो ये वफाकी महोत्सव जो है वो वफाकी महकमों के बारे में मामला सुनता है. सिपाही महोत्सव जो है सूबे के मामला के बारे में मामला सुनता है. जो सेंट्रल लिस्ट में दिए गए मामला आपने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में पढ़ा है तो वफाकी महोत्सव बनता है. और सूबे के मामला जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में पढ़ा है वो फॉर एग्जांपल डिफेंस का मसला है, आप जहाँ पे देखते हैं रेलवे का डिपार्टमेंट है, इस तरह आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में बेशुमार सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वो नजर आएंगे. वापडा का डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आपको किसी ऑफिशियल से ग्रीवेंसेस हैं तो आप बाकी. इसके अलावा आपको सिपाही महकमे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में लेबर के मामला है, इसी तरह एग्रीकल्चर के मामला हैं. उन मामला के बारे में जो है आप सिपाही महोत्सव की बिल्कुल जिस तरह आप ट्राइब्यूनल के सामने पेश होकर जो है वो अपने मामला जो है वो पेश करते हैं, इसी तरह जो है वो अपने मामला वफाकी महोत्सव और सिपाही महोत्सव के सामने जो है वो पेश करते हैं. क्वेश्चन if any student want to ask any question. कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं.
Thank you very much, students. Khuda Hafiz.